Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel Ravi Sir Biology. In this session we will talk about fertilization. Let me recall you, in human reproduction we have studied the gametogenesis, the gamete of male we have studied, and gamete of female. Both the gametes are produced by the process of spermatogenesis and oogenesis, and now we will talk about fertilization. The gametes which are produced, they are going to be fertilized here. जो gametes बने हैं अब वो gametes fertilize करेंगे. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन बताते हैं फर्टिलाइजेशन का. फ्यूजन ऑफ स्पर्म टू ovum. Let me clear, the sperm that ejaculated in female body. Let me draw the diagram first for your convenience. This is a structure of female reproductive tract, and this is structure of female reproductive organ, and sperms are ejaculated here in the vagina, which is almost equal to the 200 to 300 million in number. The semen, which has 3 ml approximately, in that 3 ml of semen 200 to 300 millions of sperms are present. Those sperms ejaculated by the penis into female reproductive tract, and it has to move with a speed of 1 to 4 millimeter per minute, and with that speed, by several means I will let you know, lashing movement and several things are there. So it has to go towards the female gamete, and it is present at the ampulla, because ampulla is the site of fertilization. ये ampulla क्या है, यहां से लेके और यहां तक ये जो पूरा पार्ट है इसको हम कहते हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब. ये फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं. ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको कहते हैं इस्थमस, और ये जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है इससे पहले और इस्थमस के बाद यहां तक का जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं हम एम्प्यूला. और जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो इसमें ऐसे ऐसे होते हैं इसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम. और ये इनफंडिबुलम के पास जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको कहते हैं फिम्ब्री. दिस इज कॉल्ड फिम्ब्री. So sperms are going and it is approaching towards the ampulla, where it is the correct site of fertilization. यहीं पे fertilization होता है. तो इस fertilization को होने के लिए कुछ conditions होते हैं, जैसे किन conditions से sperm यहाँ से यहाँ तक जाएगा, उसको कितने प्रॉब्लम्स होते हैं रास्ते में, यहाँ से यहाँ तक का रास्ता ट्रेवल करने में एक स्पर्म को कितना प्रॉब्लम होता है, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंस for very small size cell which is called sperm. It really faces lot of trouble. So what are the troubles are there? What are the positive things with the sperm so that sperm can move from this space to the oviduct? The part of oviduct is ampulla. So ampulla, let me clear the exact part. The part of oviduct which is called ampulla is the site of fertilization. वहीं पे fertilization होता है ampulla में, और ampulla part होता है, middle part होता है इस ओविडक्ट का, ये जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं. लेट अस सी इजैकुलेशन जो होता है, एक इजैकुलेशन वो 303 ml टू 3.5 ml सीमेन रिलीज होता है एक साथ. सीमेन और स्पर्म में डिफरेंस है. A fluid by seminal vesicle, prostate gland, Cowper's gland, ये ग्लैंड्स एक फ्लूइड रिलीज करते हैं जो इनको मीडियम प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट के लिए हेल्पफुल होता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है. तो वो फ्लूइड और स्पर्म ये दोनों एक साथ होते हैं, उसको सीमेन कहते हैं. बोर्ड का एग्जाम का ये क्वेश्चन है, आंसर ध्यान से सुनेंगे.
Sperm plus fluid released by seminal vesicle and other glands like prostate and all is called semen, or sperm is itself the gamete, the male gamete, it is called sperm. तो ये एक डिफरेंस है, सीमेन स्पर्म के साथ वो फ्लूइड आ जाएंगे तो वो सीमेन हो जाएगा। तो सीमेन जो रिलीज होता है वो होता है 3 to 3.5 ml, और उसमें स्पर्म्स के नंबर होते हैं 200 मिलियन to 300 मिलियन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये डेटा आप याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। सेकंड है वो कौन से एडवांटेजेस हैं, कौन सी एक्टिविटी ऑफ स्पर्म है जो इसको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है स्पर्म को मूव करने के लिए। तो सबसे पहला है यहाँ पे एस्पायरेटरी मूवमेंट। एस्पायरेटरी मूवमेंट एक सक्शन फोर्स की तरह काम करता है। यूट्रस इज पुलिंग द स्पर्म टुवर्ड्स द पार्ट ऑफ ओविडक्ट। स्पर्म को अपनी तरफ खींचने का काम करता है ये हमारा यूट्रस, फीमेल यूट्रस, इसलिए इस मूवमेंट को एस्पायरेटरी मूवमेंट कहते हैं। तो ऑफ कोर्स ये यूट्रस है, दिस इज अ पार्ट ऑफ यूट्रस, ये यूट्राइन वॉल है, एंडोमेट्रियम, और स्पर्म यहाँ रिलीज हुए तो इनको ये सक करता है, सक्शन फोर्स की तरह खींचने का काम करता है, जिसकी वजह से स्पर्म इजीली यहां से यहां आ सकते हैं। तो ये एस्पायरेटरी मूवमेंट होता है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है लैशिंग मूवमेंट। लैशिंग मूवमेंट भी आपको दिखाना होगा एक डायग्राम बना के स्पर्म का। जैसे ये स्पर्म है, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया था स्पर्म का। ये एक स्ट्रक्चर है स्पर्म का। इस यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं। ये हेड रीजन है, दिस इज हेड, दिस इज नेक, ये होता है मिडिल पीस, एंड दिस इज टेल। 4 पार्ट्स होते हैं, हेड रीजन, नेक रीजन, मिडिल पीस एंड टेल। बेसिकली ये 3 रीजन ही होते हैं। ये नेक को एक पार्ट नहीं माना जाता है, लेकिन कभी कभी इसको 4 पार्ट कहा जाए तो ये रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि नेक भी एक पार्ट होता है। दिस मिडिल पीस ऑफ स्पर्म इज हैविंग लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दिस हेड इज हैविंग द साइटोप्लाज्म इन इट। यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है और उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। लेट मी शो यू द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस होता है रेड कलर का, और ग्रीन कलर का जो मैंने बनाया है वो साइटोप्लाज्म होता है। द हेड रीजन इज कंटेनिंग द ग्रीन कलर structure I have made is cytoplasm, and red one is the nucleus. So this is nucleus. Middle piece and tail is there, which is providing a movement like this. Like if you are taking a lash and you are shaking in the air, ऐसे हवा में ऐसे उछालेंगे तो ऐसे ऐसे वो लैसेस ऐसे ऐसे मूव करेंगे। इसी मूवमेंट को लैसिंग मूवमेंट कहते हैं। इसके पास टेल है, इस टेल से ऐसे ऐसे मूव करते हुए ये मूव करते हुए ऐसे ऐसे मूव करते हुए ये जाता है, उसी को लैसिंग मूवमेंट कहते हैं। वो लैसिंग मूवमेंट हेल्प करता है इसको स्पर्म को ये मूवमेंट करने में, इजीली मूव करता है, और ये मूवमेंट जो है टेल की वजह से पॉसिबल होता है। और इसके पास एनर्जी भी चाहिए मूवमेंट के लिए, तो वो एनर्जी मिडिल पीस में फुल ऑफ एनर्जी होता है माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर्ड एटीपी के फॉर्म में। इसीलिए बहुत ही ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं मिडिल पीस में, और वो माइटोकॉन्ड्रिया यूटिलाइज होते हैं मूवमेंट में, और इस तरह ये मूवमेंट कर लेता है। तो दिस मिडिल पीस इज हैविंग, it is perforated with lot of mitochondria which provide energy, and with the help of that energy only that can move easily. Third is structure of organs. हमारे बॉडी में, ह्यूमन फीमेल्स की बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स को डिजाइन किया गया है, नेचर ने ऐसे स्पेशली डिजाइन किया है कि स्पर्म अगर उसमें एंटर करता है, इट कैन इजिली मूव इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, द सेक्स ट्रैक्ट्स, सो दैट इट कैन रीच टुवर्ड्स द ओवम वेयर फर्टिलाइजेशन कैन बी डन. And the last one is prostaglandins. Prostaglandins is a secretion which help
द वेजाइना टू गेट कॉन्ट्रैक्ट, और वेजाइना में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर स्पर्म का मूवमेंट इजिली होगा। तो इस तरह ये चारों पॉइंट जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं किसी भी ऑर्गन में, किसी भी स्पर्म को इजिली मूव करने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। अब बात करते हैं कि उसे प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ होती है, किस तरह के प्रॉब्लम्स एक स्पर्म को हो सकता है उस रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मूव करने के लिए। द वेरी फर्स्ट वन इज पीएच। पीएच अगर एसिडिक हुआ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का पीएच अगर एसिडिक हुआ, मींस पीएच 7 से कम हुआ, तो उस कंडीशन में स्पर्म इजैकुलेट होंगे और जैसे अंदर आएंगे वो तुरंत उनका डेथ हो जाएगा, वो तुरंत ही मर जाएंगे, क्योंकि पीएच इसके लिए नॉर्मल पीएच जो है वो 7.2 टू 7.8 होना चाहिए। ये जो है सबसे सुटेबल पीएच होता है। इस पीएच पे इट कैन वर्क प्रॉपर्ली अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर। तो ये पीएच एक वैल्यू हो सकती, पीएच एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा, फैगोसाइट्स। ये एनगल्फ हो सकता है। एनगल्फ कैसे होगा, लेट मी टेल यू। स्पर्म जा रहा है और स्पर्म जाके इसमें धंस गया, धंस जाना ही एनगल्फ होता है, और धंस जाएगा और उसमें वो सेल्स के अंदर धंस गया और फिर वो इनएक्टिव हो जाता है, तो इसको कहते हैं एनगल्फ करना। एंडोमेट्रियम थिकनेस। अब जरा देखिए ये जो थिकनेस है, ये मैं क्लियर कर दूं, ये जो थिकनेस आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये थिकनेस बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे मैंने यहां तक कर दिया, इधर से यहां इधर से कर दिया, तो जब थिकनेस हो जाएगा तो यहां से स्पर्म इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। सो थिकनेस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग। एंडोमेट्रियम 14th डे के बाद थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए स्पर्म 14th डे के बाद जाता भी है तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही कम या नहीं होते हैं। और इस तरह ये एंडोमेट्रियम थिकनेस हो गया। ये सारे पॉइंट्स ये बताते हैं कि किस तरह एक स्पर्म इजिली मूव कर सकता है इन पॉइंट से, और इस पॉइंट से हम समझ सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं स्पर्म को फर्टिलाइज होने में और फर्टिलाइज करने में, ओवम के फर्टिलाइज होने में। और एक क्वेश्चन और हो सकता है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्पर्म इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एंड द आंसर विल बी 2 to 4 मिलीमीटर। तो 2 to 4 मिलीमीटर स्पीड, ये 1 to 4 मिलीमीटर भी हो सकता है। 1 to 4 मिलीमीटर पर मिनट की स्पीड से स्पर्म यहां से मूव करते हुए और यहां जाता है। मूवमेंट कैसे होता है, लैसिंग मूवमेंट टाइप का होता है, जिसमें टेल्स ऑफ स्पर्म्स आर हेल्पिंग रियली वेरी वेल, एंड बिकॉज ऑफ टेल ओनली इट कैन मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द reproductive tract to the needed place, and this is because of so many more points are there, like aspiratory movement, lashing movement, structure of organs, prostaglandins. These all help the sperm to go to the ovum for fertilization, and some problems like pH less than 7, this is the normal pH for activity of sperm, अगर इससे ज्यादा हो या इससे कम हो तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। दूसरा है फैगोसाइट्स। ये जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है फीमेल के, वो फैगोसाइट्स ना कर लें, क्योंकि फैगोसाइट्स करेंगे तो उसमें भी स्पर्म्स डैमेज हो जाएंगे। और एंडोमेट्रियम का वॉल थिकनिंग कम होना चाहिए, थिकनिंग ज्यादा होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी और फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ही कम होंगे। तो ये रहा फैसिलिटी और प्रॉब्लम्स स्पर्म को फर्टिलाइज करने के, स्पर्म को ओवम में जाके फर्टिलाइजेशन करने के। और इजैकुलेशन का ये 2 डेटा मैंने बताया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक about this capacitation and many more things related with this in the next video. I hope you enjoyed this class today. We will see next in next video. Thank you. Have a nice day.